Dear students, today I am again with you all. You know, we have to study today value added method and its numericals. Particularly, as you know, we have already studied about this value added method. So I am going to take some numerical based on this value added method. So dear students, before taking up the numericals from this particular method, we have to recapitulate actually how do we calculate this numericals through value added method. As you know, dear students, first of all, I had made it clear that we have to calculate value of output. Value of output, and its formula is sales plus change in stock. I hope it is clear. Value of output is equal to sales plus change in stock. And thereafter, dear students, you know, if this sales is not given directly, we have to calculate the value of sales by multiplying product, that is the unit of output, into price of that particular product per unit. By calculating this, we put the value of sales here, and as far as this change in stock is concerned, you know that the change in stock is equal to closing stock minus opening stock. So I hope up to this point, that is the value of output is equal to sales plus change in stock. ये बात क्लियर होगी आपको, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा. Let's move to the next step, dear students. Thereafter, we have to calculate the gross value added at market price, और इसका फार्मूला होता है value of output minus intermediate consumption. You know, the next step under this value added method is GVA at MP, जिसको हम लोग gross value added at market price बोलते हैं, and this is equal to value of output minus intermediate consumption. Intermediate cost भी इसे कहते हैं. Intermediate consumption basically ये है. So it is to be kept in your mind. एंड देयर आफ्टर, अगर इस मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए कहा गया है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है? दिस इज नोन एज NNP एट FC. नाउ दिस वैल्यू, दैट इज द GVA at MP, is to be put up here. Now the term is to balance this formula. How? This is the N. First N, as I had told you, stands for net, and this is the G. तो net is equal to क्या होता है? Gross minus depreciation. So you have to put up here minus depreciation, and here this is the N again, which comes in between, that is known as the national, and यहाँ ये वैल्यू यानी ये डोमेस्टिक के बराबर है. तो हमें नेशनल निकालना है बच्चों. नेशनल इज इक्वल टू क्या होता है? डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एंड हियर व्हाट इज दिस? ये P और A में कोई डिफरेंस नहीं है, PP रहता ही है, और वहां पर कोई किसी भी तरह की बैलेंसिंग नहीं की जाती है. एंड हियर एज फार एज दिस FC एंड MP इज कंसर्न्ड, FC इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कैन एनीबडी टेल मी एग्जैक्टली? ओके, लेट मी टेल. FC इज इक्वल टू MP माइनस NIT. दिस इज योर होल फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू दिस वैल्यू एडेड मेथड. इफ यू लुक एट NNP FC is equal to GVA MP, that we have already calculated, and after that the whole formula is to be balanced to arrive at national income. Is it clear, dear students? So let's move to one or two numericals based on this topic. So I hope कि आप लोगों ने इसको जरूर समझ लिया होगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं.
Yes, please, dear students, keep on noting it down in your notebook. आपको अपने नोटबुक में ये सारी की सारी चीजें नोट कर लेनी है, कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं है. चलिए अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. न्यूमेरिकल में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NBA at FC. व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? यहां देखिए कह रहा है कैलकुलेट NBA at FC. इट इज टू बी कैलकुलेटेड. ये हमको कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. बट व्हाट इज गिवन? इफ यू लुक एट सेल्स इज गिवन 300 crore, opening stock is given 40 crore, depreciation is given 30 crore, intermediate consumption is given 120 crore, exports is given 50 crore, change in stock is given 20 crore, and net indirect taxes are given 15 crore, and factor income to abroad is given 10 crore. Based on this information, we have to proceed to calculate this net value added at factor cost. As you know, dear students, what we have to apply to calculate the value of this particular aggregates under this value added method, first of all we have to calculate value of output. So सबसे पहला फार्मूला आप क्या लिखेंगे? Value of output is equal to sales प्लस चेंज इन स्टॉक. ये देखिए आप डेल्टा का साइन लगा देंगे तो ये बताता है चेंज इन स्टॉक. अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स. मैंने आपको सेल्स कितना बताया था? 300 करोड़. यहां 300 करोड़ आपने रख लिया और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 20. ये 20 करोड़ तो ये कितना हो गया? 320 करोड़. किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू है वैल्यू ऑफ आउटपुट की. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? अब हमें करना है कैलकुलेट GBA एट MP. इसका फार्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी है यहां पर? 320 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 120. सो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 200. नाउ गेम इज नॉट ओवर सो फार. अभी स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. सो हियर यू हैव टू पुट अप द वैल्यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट. NBA at FC इज इक्वल टू, अब जो आपने कैलकुलेट किया है NBA at FC आपको निकालना है. अब जो आपने कैलकुलेट कर रखा है उसको यहां रखेंगे, यानी GBA at MP. अब आप इसको बैलेंस करेंगे. ये नेट है, ये ग्रॉस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन इन ऑर्डर टू गेट नेट वैल्यू आउट ऑफ ग्रॉस. एंड हियर VV इज कॉमन, AA is also common, and this is FC, and this is market price. We have to calculate at factor cost. So factor cost is equal to market price minus NIT. So put up here NIT. Now GBA at MP कितना आया है आपका? 200. यहां पर 200 वैल्यू रख दीजिए. अब माइनस डेप्रिसिएशन कितना है डियर स्टूडेंट्स? अपने बुक में देखिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे रखी है 30 और NIT की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? यू नो NIT, if it is not given directly, it might be given in fractions in the form of IT and subsidies. So by balancing that one, I mean to say, if you want to arrive at NIT, you will have to subtract the subsidies from indirect taxes to arrive at this particular point. But here what is the case? The NIT is given directly and its value is 15. So if you look at what you will get here, 200 minus 45 is equal to 155
करोड़. What is your right answer? Right answer is 155 करोड़. आई होप कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी. जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, प्लीज नोट इट डाउन. कम ऑन गाइस, फास्ट and note it down because it's very important and it will help you to understand the whole concept that you want to understand really. So is there any doubt? No, presuming that there is no doubt. So let's move to the next question of this value added method. It is little bit complicated than our first question. So let's move, dear students. Okay guys, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? आपको यहां पर सेल्स कैलकुलेट करना है. You have to calculate sales. Sometimes normally sales is not calculated. So, हम लोग यहां पर एक नए तरीके की चीजें सीखेंगे. We have to, numerical is given, calculate sales from the following data. एक डेटा दिया गया है जिसके द्वारा हमें सेल्स कैलकुलेट करना है. तो हमने यहां पर लिख दिया सेल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एंड नाउ व्हाट इज गिवन. अब हम इनको भूल जाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपना वैल्यू एडेड मेथड में जो सबसे पहली चीज कैलकुलेट करते हैं, आपको मालूम है, वो हम करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ये फार्मूला आपने रख दिया. आपने फार्मूला रखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है. सेल्स दिया नहीं है, सेल्स इज टू बी कैलकुलेटेड. सो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मान लीजिए सेल्स नहीं दिया, सेल्स को वैसे ही रख दीजिए. और यहां पर देखते हैं चेंज इन स्टॉक क्या है. चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो यहां पर इसका फार्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक 600 है और ओपनिंग स्टॉक 100 है. तो चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा बच्चों? 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500. यानी ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? सेल्स प्लस 500. उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद कैलकुलेट करते हैं जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी. वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी आई हुई है आप देखें. सेल्स प्लस 500 और इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू इज गिवन 3000. यहां पर आपने पुट अप कर दिया. तो अब आपका जीवीए एट एमपी, यू जस्ट कैलकुलेट हाउ मच डू यू गेट. जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू सेल्स minus 2500. This is the value of GVA at MP. Now, dear student, हमें तो क्या निकालना है? सेल्स. तो हम सेल्स कैसे निकालेंगे? एक वैल्यू और दी गई है. NBA at market price is given. What is given? NBA at market price. तो यहां पर आप NBA at MP is equal to GVA एट एमपी रखें. अब आप इनको बैलेंस करना है. एनबीए एट एमपी इज गिवन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये नेट है और यहां पर ग्रॉस है. माइनस डेप्रिसिएशन. वी कॉमन है, ए कॉमन है, एमपी भी कॉमन है. तो एनबीए एट एमपी की वैल्यू यहां 2000 इज गिवन. इट इज गिवन 2000. और जीबीए एट एमपी की वैल्यू ये कितनी है? ये पूरी वैल्यू यहां देखिए कितनी दी हुई है. ये दी हुई है सेल्स माइनस 2500 और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप वहां से ले लीजिए 700 दी हुई है. 700. तो अब यहां पर देखिए आपका 2000 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 3200. अब आपका क्या हो जाएगा? अब ये उधर गया. सेल्स को अगर आपने इसको
सेल्स इज इक्वल टू कितना होगा 3200 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1200. योर आंसर इज sales is equal to 1200. So dear students, what was the modalities to calculate this value? Added related questions, you must have got this point, and I hope ki you might have got all the concepts that I have discussed. So I hope ki you will be revising so many questions from this method. So thank you very much for being with me, and we will meet soon. Thank you.